Huh? Yeah, because it's not. It's, नाम संकीर्तन की जाए। जय राधा माधव। हरे राधा माधव। हरे गोपी जय
अ, हरे कृष्णा। आप लोग सबको हमारे वीकली संगम में स्वागत है, और जो लोग ऑनलाइन भी जुड़े हैं आज। लास्ट सेशन में हमने टेक्स्ट टू पूरा कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने देखा था कि ऐसा जो सिक्स ऐसा क्या बोलते सिक्स कार्य जो हमारे मतलब भक्ति मार्ग में बाधा बनता है, जो डिवोशनल सर्विस को मतलब एंटेंगल करता है। तो इसके बारे में हम लोग ने चर्चा किया था। तो फिर आज हम लोग नया टेक्स्ट शुरू करेंगे, टेक्स्ट 3। इसमें हम लोग देखेंगे कि उसके ऑपोजिट, मतलब जो टेक्स्ट में डिस्कस किया था उसके ऑपोजिट, कि ऐसा कौन सा कार्य है। इसमें भी 6 कार्य बताया गया है जो भक्ति मार्ग के मतलब प्रतिकूल है, जो डिवोशनल सॉरी अनुकूल है, जो मतलब डिवोशनल सर्विस के फेवरेबल में है। ठीक। तो आज हम लोग पढ़ते हैं। तो सत्यनारायण प्रभु श्लोक से प्रभु कुछ रेस हैंड रेस किए, वो कुछ बोलना चाहता है। शायद गलती से हुआ होगा। नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा था कि मैं अभी ट्रैवलिंग में हूँ, तो शायद संभव हो सकता है कि मैं अपना वीडियो बीच में ऑफ कर दूं, पर मैं सुनता रहूंगा जो भी होगा। ठीक है ब्रो। यही यही इन्फॉर्म करना था। ठीक है ब्रो। ठीक है ब्रो। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा। ठीक है, तो पढ़ना शुरू करेंगे। टेक्स्ट नंबर 3, एक्टर इंस्ट्रक्शन। उत्साहान निश्चयात् धैर्यात् तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागत सतो वृत्ते सद्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। Translation: There are 6 principles favorable to the execution of pure devotional service. Number 1, being enthusiastic. Number 2, endeavoring with confidence. Number 3, being patient. Number 4, acting according to regulative principles such as Sravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, hearing, chanting, and remembering Krishna. Number 5, abandoning the association of non-devotees. And number 6, following in the footsteps of the previous acharyas. These 6 principles undoubtedly assure the complete success of pure devotional service. But devotional service is not a matter of sentimental speculation or imaginative ecstasy. Its substance is practical activity. Srila Rupa Goswami in the Bhakti Rasamrita Sindhu 1.1.11 has defined devotional service as follows. Anyabhilasita sunyam jnana karmadhyanavitam anukulyena krishnanu silanam bhaktiruttama. Uttama Bhakti, or unhallowed devotion unto the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, involves the rendering of devotional service in a way that is favorable to the Lord. This devotional service should be free from any extraneous motive and devoid of fruitive karma, impersonal jnana, and all other selfish desires. Bhakti is a sort of cultivation. As soon as we say cultivation, we must refer to activity. Cultivation of spirituality does not mean sitting down idly for meditation as some pseudo-yogis teach. Such idle meditation may be good for those who have no information of devotional service, and for this reason, it is sometimes recommended as a way to check distracting materialistic activities. Meditation means stopping all nonsensical activities, at least for the time being. Devotional service, however, not only puts an end to all nonsensical, mundane activities, but also engages one in meaningful devotional activities. Sri Prahlada Maharaja recommends Sravanam Kirtanam Vishnu Smaranam Pada Sevanam
Archanam Vadanam Dashyam Sakhyam Nivedanam. The 9 process of devotional services are as follows. Number 1, hearing the name and glories of the Supreme Personality of Godhead. Number 2, chanting His glories. Number 3, remembering the Lord. Number 4, serving the Lord's feet. Number 5, worshipping the deity. Number 6, offering obeisances unto the Lord. Number 7, acting as the Lord's servant. 8, making friends with the Lord. Number 9, surrendering oneself fully to the Lord. Shravanam or hearing is the first step in acquiring transcendental knowledge. One should not give oral reception to unauthorized persons, but should approach the proper person as recommended in Bhagavad Gita 4.34. Tat vidhi pranipatena pariprasnena sevaya upadeshyanti te jnanam jnaninas tattvadarshinaha. Thus try to learn the truth by approaching a spiritual master. Inquire from him submissively and render service unto him. The self-realized soul can impart knowledge unto you because he has seen the truth. It is further recommended in the Mundaka Upanishad that Vijnanartham sa gurum eva vikachet. That to understand their transcendental science, one must approach a bona fide spiritual master. Thus, this method of submissively receiving transcendental confidential knowledge is not merely based on mental speculation. In this regard, Sri Chaitanya Mahaprabhu told Rupa Goswami, Brahmanda Brahmite Kona Bhagyavan Jiva Guru Krishna Prasade Tilaka Bija. In the course of traversing the universal creation of Brahma, some fortunate soul may receive the state of Bhakti Lata, the creeper of devotional service. This is all by the grace of Guru and Krishna. Chaitanya Charitamrita, Madhya 19.151. The material world is a place of confinement for the living entities who are by nature Anandamaya, pleasure-seeking. They actually want to be free from the confinement of this world of conditional happiness, but not knowing the process of liberation, they are bound to transmigrate from one species of life to another and from one planet to another. In this way, the living entities are wandering throughout the material universe. When, by good fortune, one comes in contact with a pure devotee and hears from him patiently, one begins to follow the path of devotional service. Such an opportunity is offered to a person who is sincere. The International Society for Krishna Consciousness is giving such a chance to humanity at large. If, by fortune, one takes advantage of this opportunity to engage in devotional service, the path of liberation immediately opens. One should accept this opportunity to return home back to Godhead very enthusiastically. Without enthusiasm, one cannot be successful. Even in the material world, one has to be very enthusiastic in his particular field of activity in order to become successful. A student, businessman, artist, or anyone else who wants success in his line must be enthusiastic. Similarly, one has to be very enthusiastic in devotional service. Enthusiasm means action, but action for whom? The answer is that one should always act for Krishna. Krishna Thakila Cheshta Bhakti Rasamrita Sindhu. बहुत सुंदर श्लोक है ना। श्री रूप गोस्वामी ने बताया, मतलब हमें दिया है कि किस प्रकार से हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। पहले दिया था कि किस प्रकार हमारा भक्ति में, मतलब हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्या क्या कारण की वजह से, है ना, जो हमारे भक्ति में हानि करता है। अब ये दिया है कि क्या क्या करने से हमें भक्ति में हम आगे बढ़ सकते हैं। वो डोंट्स था, अब ये वाला श्लोक है डूज के बारे में बता रहे हैं। तो आज के इसमें तो सिर्फ मतलब उत्साह के बारे में ही कवर हुआ है ना। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी तो इसमें बहुत लंबा तात्पर्य, काफी कुछ पहले बताने के बाद में फिर उत्साह के बारे में बताते हैं प्रभुपाद जी कि क्यों हमें ये, मतलब भक्ति किस प्रकार करना चाहिए और उत्साह सिर्फ कृष्ण के लिए होना चाहिए करके ना। तो इसको धीरे धीरे करके हम आगे
डिस्कस करते जाएंगे। पहले थोड़ा ट्रांसलेशन हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं ना प्रभु। तो सबसे पहले तो उत्साह के बारे में, उत्साह होने के लिए बोले हैं, है ना। तो उत्साह तो तात्पर्य में ही प्रभुपाद जी ने थोड़ा सा बता दिया है कि कृष्णा अर्थात कि हम चेष्टा करके कृष्ण के लिए हमारा चेष्टा होना चाहिए। हमारा जो भी इंतुजियाज्म होना चाहिए वो भगवान की भक्ति के लिए होना चाहिए। तो आगे इंडेवरिंग विथ कॉन्फिडेंस, निश्चय, है ना, और फिर धैर्य, ये धीरे धीरे करके आगे आएगा। तो हम लोग इस अभी थोड़ा डिस्कस करें या फिर जिस प्रकार पढ़ जाता है वैसे डिस्कस करें, तो कैसे करना चाहिए? अरे वो ट्रांसलेशन ऐसे ही होते थे और हम लोग पॉपअप में हेडलाइन डिस्कशन करते हैं। पापड़ से ही Discuss जैसे कुछ हम्म। और जैसे इधर प्रभुपाद ने सबसे पहले लाइन में ही बताया है कि जो डिवोशनल सर्विस है, जो भक्ति है, ये मतलब सेंटिमेंटल, जो मतलब भावुकता ज्यादा हम लोग को इसमें नहीं होना चाहिए। हम लोग को मतलब प्रैक्टिकली हर चीज करना चाहिए और प्रैक्टिकली सोचना चाहिए। तो जैसे कोई कोई लोग बहुत भावुक हो जाते हैं भक्ति हो करके, फिर ज्यादा ही सेंटिमेंटल होके कुछ टाइम बाद जिससे वो सेंटिमेंट इमोशंस खत्म हो जाता है, वो लोग को भक्ति भी ऐसे ही हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो जैसे इधर मतलब ये प्रभुपाद ने रूप गोस्वामी, श्री रूपा गोस्वामी के भक्ति रसामृत सिंधु से कोट किया हुआ है, जिसे बताया गया है कि जो उत्तम भक्ति है और या जो फिर अनअलॉयड डिवोशन जो जो भगवान कृष्ण के लिए है, इसमें सबसे जो फेवरेबल है, मतलब जो डिवोशनल सर्विस के लिए जो फेवरेबल है, वो करना चाहिए हम लोग को। तो इसमें इसमें एक चीज हम लोग थोड़ा सा और ये कर सकते हैं। जैसे प्रभुपाद ने, राधापति प्रभु ने बोला था फर्स्ट लाइन में, सेंटिमेंटल स्पेक्यूलेशन और इमेजिनेटिव एक्सटेसी करके बोला है ना। तो मतलब जैसे धाम वगैरह भी हम लोग जाते हैं, धाम में नहीं जाते हैं तो भी हम लोग, जैसे अभी सब लोग हम लोग आश्रम में ही रहते हैं, तो मंदिर में भी ऐसे कुछ कुछ लोग दिख जाते हैं कि सोचते हैं कि मतलब देखने में तो एकदम मतलब ऐसे लगता है ना, कि बहुत एक्सटेसी में है करके, ऐसे करके। और कभी कभी बात करते समय भी कुछ लोग ऐसे बाहर से आते हैं, तो वो लोग बोलते हैं, मतलब वो लोग इस हिसाब से बोलते हैं कि मुझे तो ऐसा रोज ऐसा एक्सटेसी होता है जब मैं भगवान का नाम लेता हूँ, ऐसे करके ना। लेकिन फिर वो कभी मतलब इसको भी हम लोग देख करके जज जज तो नहीं, मतलब देख करके हमें पता चल सकता है कि ये मतलब क्या कैसा है उनका करके। बिकॉज हाँ, क्योंकि अभी वो लोग साधना भक्ति नहीं किए हैं, है ना। जो जो ये एक्सटेसी है, जो जो डिवोशनल सर्विस में जब एक्सटेसी वगैरह साधना भक्ति के बाद आने लगता है ना, जिस प्रकार भक्ति रसामृत सिंधु में बताया है, तो वो लोग साधना भक्ति वो लोग कभी जब भी नहीं किए हैं, कुछ भी नहीं किए हैं। और ऐसे वो लोग हाँ, ऐसे वो लोग सोचने लग जाते हैं कि मैं भक्ति मतलब थोड़ा सा मैं मंदिर आ गया और फिर थोड़ा सा रोना वोना दिखा दिया तो मतलब बहुत ज्यादा भक्ति है करके, है ना। तो ये सब चीज तो ये नहीं है करके प्रोपा जी बोल रहे हैं, ये भक्ति नहीं है ना, स्पेकुलेशन। तो मतलब कुछ कुछ ऐसे आप देखे होंगे प्रभु आप, हम लोग भी जब बाहर ट्रैवल करते हैं इसके बारे में कुछ, इसमें बहुत हम लोग अच्छे से ये कर सकते हैं। हाँ, जैसे कि हम लोग इसमें भी हम लोग एक कर सकता है कि आजकल तो बहुत बोलता है कि हम भगवान को सेवा करते समय मन साफ होने से चलेगा, लेकिन बाहर का एक्टिविटी जो भी कर लो, कुछ भी खा ले, जो प्याज लहसुन भी खाए और बात भी करे, लेकिन मन शुद्ध होना चाहिए। वो भी एक सेंटिमेंटल बोल सकता है। हाँ, बोल सकता है। हाँ, क्योंकि मन कितना साफ है नहीं है वो तो भगवान ही कर सकता है। लेकिन इधर में बताया ना, भक्ति तो सेंटिमेंटल कभी नहीं होना है, होता है। और कभी मन की कल्पना से ये हम लोग बना के इसको करना है, ऐसा भी नहीं होता है। तो वही है, हम लोग इधर में हम लोग हम लोग ये देखो दे लाख में हम लोग संसार में देख सकता है, तो और ज्यादा से ज्यादा लोग तो बहुता से ही रहता है। और वही और फिर यही भावुकता को प्रोपा जी ने भक्ति नहीं है, बाकी नहीं बोलते।
बोले है ना, जब अब मतलब कहने का मतलब ये है कि जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा हमारा, है ना, फिलोसफी पे अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा और फिलोसफी पे हमारा स्ट्रॉन्ग ग्रिप नहीं होगा, तो ये मतलब ये ऐसा ये स्पेकुलेशन करना कि अच्छा ये हो सकता है, क्योंकि हमें आइडिया ही नहीं है, वास्तविक या शास्त्र के ज्ञान नहीं होने के कारण हमें आइडिया ही नहीं है कि नहीं, तो हम लोग इसीलिए हम लोग ये करते हैं, मतलब मेंटल स्पेकुलेशन करते हैं, अच्छा ये हो सकता है, अच्छा हाँ, ये ब्रह्म परमात्मा भगवान में शायद ब्रह्म बड़ा हो सकता है ना, हम लोग तो वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब ये क्योंकि हम लोग पढ़ा नहीं है, शास्त्र नहीं पढ़ा है, तो हम लोग ये सब लोगों के दिमाग में आता है, और वो और फिर किसी का भी बात सुनेंगे हम लोग, फिर क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है तो हाँ हाँ ये तो सही बोल रहा है ना, है ना, ऐसे मतलब चाहे दूसरे फिलोसफी वाले, हाँ, तो फिर ऐसा हमें फील होने लग जाता है। तो इधर मैं आगे तो लॉस कर रहा था कि जैसा हमने तो सिंधु का 1.1 पर जबे ने बताया कि है ना, भक्ति ऐसा होना चाहिए जो कृष्ण 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 के प्रति कार्य का जो अनुकूल कार्य है वो ही करना चाहिए। जैसे कि वो आगे में बताया कि जो भी कार्य जो हद कर रहा है, जो भक्ति का कार्य कर रहा है, वो क्या 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 नहीं होना चाहिए, कृष्णानिस मोटिव, मतलब हम लोग का भाव में कृष्ण के संतुष्टि के अलावा और दूसरा चीजें मन में नहीं रखना चाहिए। और दूसरा क्या है, कृति कर्म, और ये भक्ति का कार्य करने के बाद ये फल हमको मिलेगा, इसका अपेक्षा ये भी नहीं रखना चाहिए। और पर्सनल ज्ञान, मतलब ये मायावादी, एक तरीके से बोल सकते हैं मायावादी जो भगवान का अस्तित्व नहीं है वो क्या, उसका ज्ञान भी, फिर उसके ज्ञान के जरिए भी नहीं करना चाहिए। एंड ऑल दिस सेल्फिश डिजायर, जो और खुद के लिए, खाली खुद के लिए जितना भी इच्छा है ना उसको पूर्ण करने के लिए भक्ति नहीं करना चाहिए। मैं ना इसमें थोड़ा सा प्रॉपर जी हमारा अंडरस्टैंडिंग क्लेरिफाई करना चाहता हूँ। जो फर्स्ट वाला लाइन में जो सेंटिमेंटल स्पेकुलेशन, इमेजिनेटिव एक्सटेसी बोल रहे हैं ना, उसमें भी हम लोग थोड़ा सा कॉन्टेम्पलेट करेंगे अच्छा से क्या क्या ऐसा दिखता है अभी के समय में, है ना, वो थोड़ा हमारा अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग करवाना, मतलब अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग होने का ये चाहते हैं प्रॉपर जी ना, हमारा प्रॉपर नॉलेज के साथ में, और इसमें भी जो अनलॉयड डिवोशनल सर्विस है प्रॉपर ये, और फिर देखा जाए तो ये जो प्रभुपाद जी का मिशन है इसमें भी यही ये है प्रभु, मतलब जिस प्रकार अनुकूल कृष्णानुशीलनम है ना, मतलब कि कृष्ण की कैसे बोलेंगे, हाँ फेवरेबल, हाँ मतलब फेवरेबल टू कृष्णा या फेवरेबल टू डिवोशन, ऐसा कार्य करना चाहिए करके बोला है ना, तो प्रभुपाद जी का जो भी मिशन, ये मिशन में जितने भी कार्य है हर चीज हम लोग मतलब कृष्ण के लिए फेवरेबल ही है ना, तो ये प्रभुपाद जी का एकदम मिशन के साथ अलाइन है, इसको श्लोक है ना, हमारा जो मिशन है, इसका उनका मिशन है क्या कृष्ण कॉन्शियसनेस के साथ एकदम अलाइन, क्योंकि प्रभुपाद जी हमें हमेशा क्लास में भी सुनेंगे तो ये सेल्फिश डिजायर नहीं होना चाहिए, और फिर दूसरा अंतरिय मोटिव नहीं होना चाहिए, है ना, और वैसे भक्ति करना चाहिए, वैसे डिवोशनल सर्विस को परफॉर्म करना चाहिए करके प्रभुपाद जी हर बार यही बताता है ना, तो एकदम ये अलाइन, ऐसा मुझे ऐसा फील हुआ ये फर्स्ट सेकंड फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ ये देख के, देखते हैं दूसरा इसका क्या। आगे नेक्स्ट लाइन में प्रभुपाद ने बहुत अच्छा लिखा कि जो भक्ति है ये मतलब एक सॉर्ट ऑफ कल्टीवेशन, जैसे मतलब अ, अगर हम लोग कुछ धान एग्जाम्पल, अगर हम लोग को धान वगैरह कल्टीवेट करना उगाना है, तो ऐसे बैठ के बस बैठे रहने से वो नहीं होगा, तो उसके लिए हम लोग को परिश्रम करना पड़ेगा, खेत जोतना पड़ेगा, एक्टिविटी, हाँ वो इसने सीधा प्रभात ने लिखा है कि वी मस्ट रिफर टू एक्टिविटी, द कल्टीवेशन ऑफ स्पिरिचुअल रेस्पेक्ट मींस सिटिंग डाउन आइडली, मतलब बस बैठ के ध्यान करना, मेडिटेट करना, ये एक सॉर्ट ऑफ मतलब एक्टिविटी नहीं है, ये बस आइडल सिटिंग। तो जो भक्ति होता है ये कल्टीवेशन, इसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, एक्टिविटी कुछ करना पड़ेगा। जो इसमें प्रभुपाद ने बोला कि जैसे कोई जो स्यूडो योगिस होता है, जो फेक योगिस होते हैं, जैसे वो लोग बताते हैं कि, जैसे वो लोग बताते हैं कि मतलब बस हम लोग को ध्यान करना चाहिए वो, और सबसे ये मायावादी का या फिर ये वो एक ज्योति से ब्रह्म कुमारी लोग का होता है, एक ज्योति के ऊपर ध्यान कर,
ये सब मतलब आइडल मेडिटेशन है, ये मतलब हम लोग के भक्ति के अनुकूल नहीं है। बड़ा संजय मतलब प्रभुपाद जी का कहना है कि इंगेजमेंट ना, डिवोशनल सर्विस मतलब एक्टिविटी और इंगेजमेंट होना पड़ेगा। अदरवाइज क्योंकि इसीलिए प्रभुपाद जी बोलता है हर बार ये भक्ति को ट्रांसलेट करते हैं डिवोशनल सर्विस, डिवोशनल सर्विस, डिवोशनल सर्विस करते हैं, लास्ट में सर्विस करके प्रभुपाद जी डालते हैं ना। तो सर्विस का मतलब है कि इंगेजमेंट, है ना, इंगेजमेंट एंड एक्टिविटी, ये दोनों चीज होना है, सर्विस सेवा होना है। तो उसके उसके लिए ये एक्टिविटीज के लिए प्रभुपाद जी कोट किया ना श्लोका, जो नवविधा भक्ति 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यम आत्मा निवेदनम। तो वही इसमें 9 ये दिए हैं प्रोसेस जिससे हम भक्ति कर सकते हैं। जिसमें ज्यादा रुझान रुचि है वो फॉलो करके कर सकते हैं। और इसमें भी प्रधान प्रभुपाद जी बोलते हैं कि प्रधान ये है सबसे फर्स्ट जो श्रवणम है ना, हियरिंग। इस श्रवणम और कीर्तनम में ही यदि देखा जाए तो फिर हमारा पूरा जितने भी वेद है, शास्त्र, उपनिषद है, पुराण है, उसमें यही 2 चीज भरा है। कोई प्रश्न पूछ रहा है और फिर कोई उत्तर दे रहा है, और जो प्रश्न पूछ रहा है वो श्रवण कर रहा है, और जो उत्तर दे रहा है वो क्या कीर्तन कर रहा है ना, भगवान का। तो इसमें पूरा पूरा शास्त्र में ही यही चल रहा है, श्रवणम और कीर्तनम चल रहा है। अब जो श्रवण कर रहे हैं भगवान का के बारे में कीर्तन कर रहा है ना, परीक्षित महाराज, और परीक्षित महाराज श्रवण कर रहे हैं और भगवान सॉरी सुखदेव गोस्वामी भगवान का लीला गुण के बारे में कीर्तन कर रहे हैं, है ना। तो हमने जो उसके पहले जो हम लोग क्या बोलते हैं, जो योगा बताया था, तो प्राचीन पहले के बाहर के योग की लोग तो क्या बोलते हैं, खुद को योगी मानता है लेकिन असल में तो नहीं है। हम लोग बताता है कि हमेशा मेडिटेशन, हाँ मेडिटेशन जो खाली वेद के जो रिलेट करता है वही रिकमेंड करता है। तो ये कार्य कभी कभी ये इसमें होता है, it is sometimes recommended as a way to check distracting materialistic activities. ये sometimes कभी कभी रिकमेंड किया जाता है बाहर के लोगों को, ताकि वो जितना भी वो कार्य करता है उस जो उसका मन के शांति से जो डिस्ट्रैक्ट करता है वही चीजों से चेक करने के लिए, चीजों को कौन सा चीजें जो उसको डिस्ट्रैक्ट कर उसको चेक करने के लिए और डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कभी कभी इसको रिकमेंड किया जाता है। लेकिन जब हमें पता है कि डिवोशन सर्विस जो भक्ति का कार्य है वो क्या है कि मेटेरियल एक्टिविटीज को रुकवाने के क्या बोलेंगे, रुकवाने के साथ साथ हम लोग को क्या है, हम लोग का मन और शरीर दोनों क्या बोलेंगे और भगवान के तरफ हाँ भक्ति में लगा देता है। भौतिक का जैसे भौतिक संसार का जितना भी कार्य है जो डिस्ट्रैक्ट करता है वो भी रुका देता है, साथ में हम लोग का भक्ति में क्या होता है, हम लोग का जितना भी एनर्जी और ये भौतिक माइंड है सब भगवान पे लगने के लिए लग जाता है। तो इसमें हम लोग नवोविधा भक्ति आ गया, तो उसमें श्रवण कीर्तनम स्मरण विष्णु स्मरण वो सब करने से पहले सबसे पहले क्या करना है बोला था, श्रवणम। क्योंकि जो भी नया व्यक्ति आता है सबसे पहले वो किस चीज से जानेंगे, सुनने की ही जाने, सुनने के बाद ही जाने। और बताया गया है कि और भी पास में बताया कि जो अच्छा से सुनता है वो बाद में अच्छा से कीर्तन भी कर पाता है। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले अच्छा से सुनना चाहिए। और इधर में बताया कि सुनना भी किससे चाहिए, हम लोग कभी क्या बोलेंगे अनऑथराइज्ड पर्सन बोलेगा तो जो परंपरा के प्रति नहीं है। हम लोग जनरली अगर स्टडी करेंगे, नहीं तो ये शास्त्र के माध्यम से बोलेगा तो 4 संप्रदाय है जो हम लोग को बताया गया है, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और ब्रह्म मध्व। जो इस्कॉन है वो तो ब्रह्म मध्व और संप्रदाय का है। तो हम लोग के लिए तो क्या है, इस्कॉन के संस्थान के अंदर भी डिवोटीज है उससे सुनना चाहिए।
जो प्रभुपाद का अनुयायी है, प्रभुपाद को फॉलो करता है, वही से हम लोग सुनना चाहिए। और इधर में आगे में भी भगवद गीता में भी कुछ श्लोक दिया है ना, तद्विधि प्रणिपातेन परिपुरुषस्य उपदेक्षन्ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। ये हम लोग का एक गुरु, एक प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए, उसके उस पे क्या बोलेंगे हम लोग सवाल प्रश्न प्रश्न करना चाहिए। हाँ, समय से भी हम लोग विनम्र भाव से सवाल करना चाहिए, उसका सेवा करना चाहिए, और जो भी ज्ञान वो देता है हम लोग सुन लेना चाहिए, मतलब उसका हम लोग कर्म करना चाहिए, क्योंकि वही गुरु वो सच को क्या बोलते हैं, सच को देख चुका है और आपको वो सच को भी दे सकता है। ये जो भी श्लोक है भगवद गीता का, तो सेम मतलब श्लोक ये प्रभुपाद ने फॉरवर्ड में लिखा है, ये सेम मुंडक उपनिषद में भी दिया हुआ है कि जो ट्रांसेंडेंटल साइंस ऑफ डिवोशनल सर्विस है, जो डिवोशनल सर्विस का जो जानकारी है या उसके बारे में सब हमको जानने के लिए हम लोग को स्पिरिचुअल मास्टर के, मतलब एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर जो परंपरा के लाइन से आ रहा है, तो उनको अप्रोच करना चाहिए, और वो भी एकदम सबमिसिवली, मतलब एकदम हाँ सरेंडर, तो एकदम पूरे मन से सरेंडर करके। ये नहीं कि मतलब ईगो या फिर दिखावा उस इस। तो इधर फिर चैतन्य महाप्रभु ने भी रूप गोस्वामी को बताया गया, तो बताया बताया है कि ब्रह्मांड ब्राह्मिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए मुक्ति देता भेजो। जो ये क्या बोलते हैं, ये पूरे ब्रह्म बहुत बहुत जन्मों जन्मांतर वो भटकते रहने के बाद क्या होता है, जो फॉर्चुनेट सोल है उनको, मतलब जो भक्ति लता का, जो जैसे भक्ति लता और जो क्रीपर, जो उसकी मतलब जो सीट है वो मिलता है, और फिर द क्रीपर जो डिवोशनल सर्विस के क्रीपर है वो मिलता है, और फिर गुरु और कृष्ण के, और ये सब कैसे होता है बोलते, गुरु और कृष्ण के ग्रेस, यानी कि उनकी कृपा से। ये इसमें हम लोग बहुत ये अगर आज जा करके अगर हम ये पढ़ेंगे, रेफरेंस दिए हैं प्रभुपाद जी ने ना, चरितमृत का मध्य लीला 19.151 से, है ना, तो इससे थोड़ा पहले से, एक दो श्लोक पहले से ही, और फिर उसके बाद भी काफी सारा श्लोक अगर हम लोग पढ़ेंगे तो ये पूरा इसमें जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने पूरा बहुत डिटेल में इसके बारे में लिखा है ना। क्यों क्रीपर लिखा है? क्रीपर तो मतलब एक पेड़ भी लिख सकता है कि नहीं? सीट तो पेड़ पेड़ प्रॉपर पेड़ खड़ा हो सकता है, लेकिन पेड़ क्या है, इंडिपेंडेंट है, वो खड़ा हो सकता है, लेकिन क्रीपर के लिए कोई ये चाहिए, चाहिए हाँ, कि वो ऊपर चढ़ने के लिए या कहीं जाने के लिए उसको कोई सहारा चाहिए, है ना। तो हमारे लिए कौन है? वो भगवान कृष्ण का चरण, है ना। तो ऐसे ऐसे करके है। फिर उसमें वैष्णव अपराध क्या है, वो हाथी मता, वो मतलब पागल हाथी है, वो पूरा मतलब आपका अगर ये ऊपर ऊपर पहुंच भी गया, वो क्रीपर जो है काफी ऊपर पहुंच गया, है ना, और नीचे से हाथी ने उसको ऐसे तोड़ दिया, तो क्या होगा, वो मतलब अप्रूव कर दिया उसको, ऊपर का क्या हो जाएगा, सूरज सूख जाएगा, है ना। तो वो पूरा बहुत अच्छे से एग्जाम्पल, इस पे बहुत काफी लंबा है सेक्शन, है ना। तो देख करके हम लोग पढ़ सकते हैं, यदि आज जाकर के हम पढ़ेंगे तो बहुत बहुत सुंदर सेक्शन है ये, बहुत अच्छा है ना। तो उसने पूरा बहुत अच्छा एनालॉजी के साथ सिखाया है। और श्रवण कीर्तन से क्या है, वो जल और मतलब मैन्योर खाद बोलता है ना, तो वो है उसके लिए अच्छा, अच्छा मतलब सुंदर ग्रो होने के लिए जल चाहिए, मैन्योर वगैरह चाहिए ना, फर्टिलाइजर वगैरह चाहिए, तो श्रवण कीर्तन है, उससे ये होगा। भक्त शुद्ध भक्ति मुख से हम श्रवण कीर्तन करेंगे तो वो और भी अच्छे से पढ़ता जाएगा, करके ये सब उसमें अच्छा बहुत सुंदर सुंदर एनालॉजी के साथ में ये दिए हैं पूरा कंप्लीट इस पे। और चाहे उसको हाँ, ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे दिए हैं, तो वो सब हम लोग मतलब आपको जाके हम लोग पढ़ सकते हैं, ये रेफरेंस लेके ना। तो हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट संडे में हम जब आएंगे तो ये पेपर के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं। इसमें भी हम लोग थोड़ा ज्यादा टाइम नहीं, 5 मिनट 10 मिनट थोड़ा इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत सुंदर सेक्शन है, यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो है ना, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं नेक्स्ट संडे को। तो
इसलिए प्रभुपाद जी भी यहाँ पर वही बोल रहे हैं ना, जो हमारा सोसाइटी है, जैसे इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर क्रिस्टल कॉन्शियसनेस, चांस ऐसे ऐसे ही चांस दे रहा है, पूरे ह्यूमैनिटी को ही चांस दे रहा है कि उसको भक्ति लता बीच मिले, है ना, और फॉर्चुनेट हो। हाँ, जिसका अभाग्य, बिल्कुल भाग्यमंद भाग्य थे, है ना, उनको फॉर्चुनेट बना रहा है बाय द मीडियम ऑफ प्रसादम और बुक्स, वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ श्री प्रभुपाद, है ना। तो ये सबसे, और है ना, ये सब कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन प्रभुपाद जी के टीचिंग से सभी लोग भाग्यवान हो रहे हैं। नहीं तो कहाँ हम लोग अभी क्या कर रहे होते हैं, और फिर अभी प्रभुपाद प्रभुपाद जी की वजह से हम इस्कॉन में, है ना, थोड़ा थोड़ा बहुत जितना हो सकता है अपने सत्ता के हिसाब से आज सेवा कर पा रहे हैं। तो इधर वही बताया कि हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग जितना भी हम लोग भक्ति कार्य कर रहा है खाली कृपा के जरिए ही कर रहा है। मेरे को बताया कि अगर कोई व्यक्ति अटकने के बाद अगर एक व्यक्ति, वो क्या बोलता है, उसका अच्छे भाग्य बनने से एक गुरु, सच्चा गुरु मिल जाता है, तो वो डिवोशनल सर्विस करना शुरू कर देते। तो वही जो हम लोग जितना भी सब क्या बोलेंगे, जनरल पब्लिक के लिए बोलेंगे तो इस्कॉन आने से सबका भाग्य बदला है, नहीं तो क्या बोलेंगे, भक्ति का कार्य करने का मौका मिला। एक और चीज भी हम लोग थोड़ा सा ये सोच सकते हैं ना प्रभु, कि मतलब काफी प्रभुपाद की कृपा से बहुत सारा ये प्रभुपाद के लेटर्स भी, और ये प्रभुपाद के ये कन्वर्सेशन और क्लासेस भी सुने हैं, और बहुत सारे इस्कॉन के हमारे गुरुजन की क्लासेस भी सुने हैं। हर चीज का हमें कुछ ना कुछ रीजन मिल जाता है, मतलब रीजन या फिलोसफी हमें मिल जाता है। जैसे ये क्रिएशन क्यों हुआ, उसका भी फिलोसफी या एक रीजन है। डिस्ट्रक्शन होता है, उसका भी कोई फिलोसफी है। हम लोग क्यों वापस बार बार आना आना पड़ता है ना, कर्म के वजह से आना पड़ता है। हर चीज का फिलोसफी और रीजन है ना। लेकिन फिर ये गुरु और कृष्ण का कृपा क्यों होता है, ये कृपा का कोई रीजन ही नहीं है कि नहीं, इसका ही कोई कृपा के बारे में कोई फिलोसफी नहीं है। मतलब वो क्या है, वो इंडिपेंडेंट है भगवान का कृपा ना। अब इसीलिए यहाँ पर बोलते हैं भाग्यवान है जी, भाग्यवान मतलब कोई लकी है इसलिए उसको ये हो गया, मतलब फॉर्चुनेट है इसलिए। लेकिन क्यों फॉर्चुनेट है, कोई रीजन ही नहीं है कि नहीं, है ना। तो मतलब इसीलिए प्रभुपाद भी बोलता है कि भगवान का कॉस्टलेस मर्सी, कॉस्टलेस मर्सी मतलब बिना कारण, है ना, अनंत की कृपा, कोई भी बिना कारण का कृपा होता है ना। तो बस ये कृपा ही इतना पावरफुल है। जैसे आपने बोला ना, कृपा की वजह से हम लोग भक्ति कर पा रहे हैं, हाँ? तो कोई कोई रीजन नहीं, हम क्या क्वालिफाइड है जो हमें कृपा मिलेगा, है ना। तो इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई रीजन नहीं है, बस ऐसे भगवान के ऊपर दया आ गया, हमारे ऊपर दया, भगवान है ना कृपा कर दी, है ना। बस यही एक चीज है जिसके पीछे कोई फिलोसफी, कोई लॉजिक काम नहीं है। और मैंने भी कहीं सुना था, वेयर देयर इज मैजिक देयर इज नो लॉजिक करके होते हैं, जहाँ मैजिक हो रहा है वहां पर लॉजिक के पीछे कोई भी नहीं दौड़ता है। तो ये ऐसे टाइप को कुछ है। तो आगे इसमें प्रभा दिखते हैं कि जो हमारे जो कृष्ण कॉन्शियस जो इंटरनेशनल सोसाइटी है, ये एक बहुत एक अच्छा चांस दे रहा है, मतलब पूरे मल्टी वाइड, पूरे वाइड वर्ल्ड वाइड की मतलब हम लोग क्या होते डिवोशनल सर्विस में एंगेज हो, और फिर हम लोग का जो पार्ट ऑफ लिबरेशन है वो खुले, और फिर हम लोग मतलब भगवान की सेवा में लग सके। और इसलिए ये जो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, ये मतलब क्या बोलते हैं, घर वापसी, मतलब बैक टू गॉड है जाने का जो अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिल रहा है प्रभुपाद के द्वारा और अपनी इस्कॉन सोसाइटी के द्वारा, इसको हम लोग मतलब वेरी उत्साहपूर्वक enthusiastic, ये बहुत उत्साह है कि हम लोग को इसको मतलब उसमें कार्य करना चाहिए, प्रोसीड करना चाहिए। हाँ, हमारे ऑनलाइन ऑडियंस को भी, प्रभु को भी पूछते हैं, उनको कुछ शेयर करना है विश्वदीप प्रभु को या साशी गोपाल प्रभु को। विश्वदीप प्रभु प्लीज थोड़ा अनम्यूट अनम्यूट कीजिए प्रभु, आप म्यूट में हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। और धन्यवाद प्रणाम प्रभु। मैं शुरू में तो ज्वाइन नहीं कर पाया प्रभु, माफ कीजिएगा, बट मैंने ऐसे भी मतलब कल आपके कहने पर भी मैंने ऐसे कुछ भी पढ़े और आगे मैंने तो कंटिन्यू किया। तो मतलब इसमें जैसे ये जो श्लोक का ये थर्ड जो टेक्स्ट है, इसके बारे में कल मैं थोड़ा बहुत तो मैंने पढ़ा। तो मतलब इसमें मतलब कल जैसे आपने ये कहा उसके बाद मैंने पढ़ा उसको, मुझे ऐसा लगा कि हाँ मतलब
मुझे जो थोड़ा दिन से मैं कुछ थोड़ा तकलीफों से गुजर रहा था, तो मुझे थोड़ा सा भी मतलब वो भी मिला, क्योंकि मैं बहुत दिन से ऐसे सोच रहा था, मैं बाहर गया था, फिर थोड़ा मुश्किल हो रहा था हमको कि थोड़ा भक्ति वक्ति में, फिर से मैंने पढ़ा, तो इसमें मतलब कि एक ही बार में नहीं होता, जिसमें पेशेंस के बारे में बोला गया था कि ये इसमें ऐसा नहीं होता है कि आज आप करें और कल एकदम भगवत धाम मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। हर चीज के लिए पेशेंट के साथ हम लोग को और उत्साह तो होना ही चाहिए। अदरवाइज उत्साह के बिना तो मतलब कुछ भी चीज करें, चाहे काम हो या कुछ भी हो, भक्ति भी हो, उत्साह के बिना तो उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो बोरिंग हो गया, फिर वो पीछे छूट जाता है। तो कल मैं पढ़ रहा था, तो इसमें वही लिखा कि कुछ भी चीज़ है पेशेंस से होती है, एक दिन में नहीं होती है। तो मुझे ये चीज़ इसका समझ आया, ये वाला टेक्स्ट का मुझे बहुत अच्छा लगा इस बात का। इसमें आगे से लिखते हैं ना वो, जैसे हम लोग के भौतिक जीवन में भी, मेटेरियल वर्ल्ड में भी हम लोग कुछ पाना है, कुछ सफलता, कुछ हम लोग का जो गोल है वो अचीव करना है, तो उसके जी लिए जी। हमको एंथुसियास्टिक होना चाहिए। हाँ हाँ, हार्ड वर्क करना पड़ता है, पेशेंस रख के हार्ड वर्क करना पड़ता है, एक दिन में कुछ भी सफलता नहीं मिलती। वैसे ही कृष्ण भक्ति भी वैसे ही तरह है। जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे वही समझ आया कि एक दिन में कुछ भी हासिल नहीं होगा, आपको कर रहे ही रहना। जैसे कि प्रभुपाद ने भी उसमें कहा है, उसमें कि जब कृष्ण कॉन्शियसनेस का मूवमेंट भी चालू हुआ था, तो मतलब एक दिन में कुछ नहीं हुआ था, शुरू शुरू में कोई भक्त नहीं थे, लेकिन बार बार प्रयास करने पे ही ये चीज आगे बढ़ी। तो इसीलिए हम लोग को भी मतलब प्रभुपाद ने अगर इस तरह से पेशेंस रख के आगे किया, तो उनके ही मतलब चिन्हों में हम लोग को चलना चाहिए कि हम लोग भी पेशेंस रख के आगे चले। और ऐसे ही हम लोग को जो डिवोशनल सर्विस है इसमें भी हमको एंथुसियास्टिक होना चाहिए, मतलब उत्साह होना चाहिए। और पता है कि इंतजाम का मतलब है एक्शन। हाँ। मतलब इंतजाम ऐसा नहीं है कि खुद से बोलने से कुछ नहीं हो रहा। अब आप इंतजाम है नहीं है तो ऐसा दिखाना है, कार्य करके बिना कार्य का, हाँ, तो जैसे मतलब उत्साह बिना कार्य का नहीं दिखता है, हाँ। बस मतलब वो इज लाइक कि मतलब हमारे डिवोशनल सर्विस में इट्स नॉट लाइक गेम ना, जैसे स्टेडियम में गेम होता है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, तो फिर मैं इतना देखता नहीं, लेकिन स्कूल में जो ये स्पोर्ट्स डे होता था, तो फिर रेड टीम या ब्लू टीम ऐसे होते थे, तो अगर हम रेड टीम है तो रेड टीम करके बाहर से चाह के सब हम चीयर करते थे, लेकिन हम लोग अंदर कुछ पर प्रभु, कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, है ना। एक लेकिन एक बात और ऐड करना था प्रभु। हाँ जी ब्रो। हाँ ब्रो, नहीं मैं ये कह रहा था कि तो मतलब, और ना प्रभुपाद की बुक्स में मतलब इतना, उसमें मतलब क्या कहते हैं, मतलब इतनी अच्छी अच्छी मतलब बातें, और उसका मतलब इतना सटीक बातें होती है ना, कि जब भी आपको प्रॉब्लम होता है, प्रभुपाद की कोई भी बुक अगर उठा लेते हैं तो ना, उसमें जैसे मैं बोल रहा था, ये भी मैं बाहर गया था तो हमको बहुत मुश्किल हो रहा था, जैसे फिर से स्टार्ट करना, मतलब बाहर था तो नहीं हो पा रहा था ना वो चीजें। मायापुर गया तो वहां तक तो ठीक था, फिर बाहर गया थोड़ा, यहाँ वहाँ गया तो मुश्किल हो रहा था, बट जैसे मतलब फिर कल जैसे आपने बोला मैं पढ़ना स्टार्ट किया, तो मतलब फिर से वो चीज एक होता है ना कि इगरनेस, चलो आज नहीं नहीं अब और आगे करना है। तो रोबाज का बुक मतलब कभी भी आप पढ़ लो, कोई भी बुक पढ़ लो, कुछ भी मन में अगर शंका होती है तो वो एक ही बार में वो उस चीज को ठीक करने में काम आती है हमेशा, चाहे कोई भी आप बुक सुन के पढ़ लो। तो वही उत्साह के बारे में बता रहे थे कि जैसे बाहर से हम लोग चेयर चेयर करते हैं ना, रेड टीम करके या ब्लू टीम करके हम लोग चेयर करता है, वो अंदर हम लोग कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, है ना। बस बाहर का ऐसे उत्साह है, वो उत्साह वहीं पर हो गया खत्म, जैसे मैच खत्म हुआ वैसे उत्साह खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, उत्साह मीन्स आपको एक्टिविटी होना ही पड़ेगा, है ना। वो अंदर करते हैं एक्टिविटी, उत्साह करके एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन बाहर, लेकिन हम भी यहाँ पर सभी लोग, कोई भी ऑडियंस नहीं, यहाँ पर सभी लोग क्या है, प्लेयर है ना। सभी लोग भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, सबका गोल क्या है कि भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना, है ना। अन्य विलास प्रसन्न, और फिर ये अनुकूल कृष्ण अनुशीलनम, है ना, ये सभी का गोल है वहां पर। सभी को वही स्कोर करना है, सभी को वही वही चाहते हैं। उसी प्रकार है ना, हम लोग उत्साह के साथ भी सब लोग जैसे अंदर जब लोग दौड़ते हैं भागते हैं, वैसे ही वो सोचता है कि हम लोग वैसे दौड़ रहे हैं भगवान भगवान को प्रसन्न करने, है ना, अपना गोल फुलफिल करने। तो इट्स लाइक दैट कि हम लोग ये एक्टिविटी कर रहे हैं। रूपा जी ने ये शंका इतना अच्छा बनाया कि मैं तो कभी कभी ये शुरू शुरू में तो बहुत दिक्कत होता है, कभी कभी वो डाउन हो जाता है जरूर। लेकिन सेवा इतना प्रकार का है जो इस्कॉन में है, वो सब सेवा में हम लोग किसी न किसी सेवा में जुड़ के हम लोग वही को लगातार करते रहेंगे, तो इंथुजियाज्म भी डाउन हो जाएगा, फिर भी हम लोग को कार्य होता नहीं। तो इंथुजियाज्म भी समय के बाद भी वो फिर वापस आ जाता है। हम लोग सिंसियरली इसको करते रहेंगे, तरह प्रकार है, तो इंथुजियाज्म बने रहेंगे। तो वही है।
हम लोग के ऑनलाइन डिवोटीज को कुछ शेयर करना है और ठीक है तो आज का सेशन हम लोग इधर ही खत्म करते हैं। आज हम लोग ने बस एंथुसियाज्म के बारे में पढ़ा है और आई गेस आगे भी और अच्छा हम लोग ऑनलाइन डिवोटी से भी हम लोग रिक्वेस्ट करता है ना, जैसे यहाँ पर चैतन्य चरितमृत का रेफरेंस दिए फर्स्ट सेकंड और मध्य ऐसे फिफ्थ सिक्स चैप्टर ये पैराग्राफ में प्रभुपाद जी ने यहाँ पर दिया है, एक रेफरेंस दिया है चैतन्य चरितमृत का मध्य लीला का 19.151 है ना। वो थोड़ा 2-3 श्लोक पहले से लेकर के आगे का थोड़ा ज्यादा श्लोक हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे ये सेक्शन ना, और फिर नेक्स्ट संडे में हम लोग इसके बारे में थोड़ा 5 मिनट ऐसे कुछ डिस्कस करेंगे। बहुत सुंदर सेक्शन है ये, है ना। मतलब हमारा कैसे डिवोशनल सर्विस में क्या क्या करने से हमारा डिवोशनल सर्विस हम आगे बढ़ता है, और क्या क्या करने से कौन कौन चीजों की वजह से ये जो डिवोशनल सर्विस है या फिर जो हमारा भक्ति का लता है, जो भक्ति का ये प्लांट है, लता है, क्रीपर है, वो कैसे नष्ट होता है, क्या क्या गलती करने से नष्ट होता है करके वहां पर बहुत अच्छे से बताया है। तो हम लोग पढ़ के नेक्स्ट वीक हम लोग आएंगे, डिस्कस करेंगे, थोड़ा डिस्कस करेंगे और रोज हम लोग ये सोच रहा था कि हम लोग हर रोज कुछ ना कुछ ये क्लास करेंगे। हाँ हाँ और फिर हम लोग ये हम लोग बाद में भी डिस्कस करेंगे। सभी लोग जब हम फिजिकली मिलेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि दिन में कम से कम 30 मिनट हम लोग है ना कोई बुक रीडिंग करेंगे आपस में। मंदिर तो सभी नहीं आ सकते, अभी सिचुएशन ही इतना खराब है। कभी कभी इंटरनेट भी ऐसा प्रॉब्लम कर देता है, लेकिन जब सिचुएशन सही होता है तो डेली हम लोग प्रयास करेंगे कि दिन का आधा घंटा हम लोग डेली इवनिंग टाइम पे जब हम लोग 7:30 के आसपास ये टेम्पल होने के बाद हम लोग आधा घंटा रीडिंग करेंगे कोई भी बुक का, है ना, सीरियल वाइज। तो इतने ठीक है। जी प्रभु। से काम और लेट प्रभु हाँ प्रभु, टाइमिंग लेट होने से तो कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, वो इसमें तो कर सकते हैं, डेली भी कर सकते हैं, इसमें इसलिए भी मुझे भी अच्छा लगेगा। हम लोग सोच रहा था कि 7 बजे नहीं, 7 to 7:30 नहीं तो 7:30 to 8 इवनिंग में ना, इवनिंग 7:30 to 8 7:30 to 8 तो ठीक है प्रभु, 7:30 to 8 ठीक है। हम लोग ऑनलाइन ही करेंगे क्या, क्योंकि घर में फिजिकल प्रेजेंस तो सब नहीं हो पाता। हाँ ठीक है प्रभु, मतलब मोस्ट ऑफ टाइम में 7:30 तक मतलब आ जाता हूँ घर में, लेकिन कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, तो जितना लेट होने से तो मेरे लिए अच्छा है। मतलब अब ये ज्यादा लेट भी नहीं, लेकिन इसे 7:30 या 8 तो बेस्ट है मेरे लिए। 8 से 8:30 तो पॉसिबल। देख लीजिए आप लोग, अगर जो भी एक दूसरे में बात करके हम लोग का अगर बन रहा है तो उसके हिसाब से करते तो एक बार फिजिकली मिलेंगे तब हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में। हैं। ठीक है। हरे कृष्णा सभी को हरीश जय। वर्णनामतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च वेरी गुड।